نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو ریویژن لیکچرز لیکچر نمبر 40 to 50. آج ہم اپنے جو لیکچر نمبر 40 اور 50 کے ایک ٹیسٹ کی جو تیاری کے لیے یہ ریویژن کلاس رکھ رہے ہیں اور آپ سب کو خوش آمدید ہے. ٹاپک جو آج ہم اس میں پڑھیں گے، جو ہم کور کریں گے آج کے اس لیکچر میں، وہ ہیں فعل مضارع، فعل مضارع میں تاکید، فعل مضارع میں حال و مستقبل، فعل مضارع خفیف منصوب، پھر صلہ سے مجرد افعال، فعل مضارع اخف اور مجزوم. فعل مضارع میں حال اور مستقبل یہ ہم نیکسٹ جو ہماری ریویژن کلاس ہوگی اس میں کریں گے. اور یہ جو ہم نے ریویژن لیکچرز کی ایک سیریز شروع کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے جملہ فعلیہ کو اس کے 10 لیکچرز کا یعنی ایک ٹاپک ہم نے کور کر کے اس کے ٹیسٹ رکھے تاکہ ہم خود کو ایویلیویٹ کر سکیں کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. اس سے پہلے جو ہمارا ایک ٹیسٹ بنے گا وہ 30 سے 40 39، ٹھیک ہے، پھر 40 سے 50 اور 51 سے مزید الفی ابواب، وہ پورا ایک ٹاپک الگ کور ہوگا. پھر دین اس کے بعد غیر صحیح افعال. اس طرح سے ہم اپنی انشاءاللہ ریویژن بھی کریں گے اور ٹیسٹ کے ذریعے خود کو ایویلیویٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کی دعا مانگتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے فعل مضارع کو دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع کیا ہے. فعل مضارع ایسا فعل ہے جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب ہم لینگویج کو دیکھتے ہیں، اردو میں دیکھیں تو ہمیں 3 طرح کے ہم زمانے پڑھتے ہیں. اس میں ہم حال، ماضی، حال اور مستقبل پڑھتے ہیں. انگلش میں بھی اسی طرح پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر پڑھتے ہیں. لیکن عربی میں 2 ہی زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ماضی اور دوسرا مضارع، رائٹ. اور اس مضارع میں ہی حال اور مستقبل دونوں کو کور کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل یشربو، وہ پیتا ہے یا وہ پیے گا. اب ہم فعل مضارع کی ٹرانسلیشن حال اور مستقبل دونوں طرح کریں گے، لیکن آگے چل کر آپ پڑھیں گی کہ وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، کون سے ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ ہم وہاں پر فعل مضارع کی ٹرانسلیشن یا تو صرف حال میں کریں گے یا صرف مستقبل میں. ٹھیک ہے، اول تو آپ یہ سب چیزیں پڑھ چکے ہیں، ہم ریویژن کر رہے ہیں. پھر علامات مضارع. پھر مضارع کی پہچان اس کی علامات ہیں، یا، تا، الف، نو. ٹھیک ہے، تو فعل مضارع ان علامات سے شروع ہوگا. آپ اس میں آپ کے روٹ لیٹرز ملیں گے، جیسے یشربو. اب ادھر یا علامت مضارع ہے اور روٹ لیٹر کیا ہے؟ شین، را، با. ٹھیک، آگے دیکھ فعل مضارع کی کنسٹرکشن کے لیے، یعنی اس کو اس طرح سے ہم اس کا اسٹرکچر سمجھیں گے، اس کے لیے ہمیں 4 باتوں کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، شروع میں علامت مضارع زبر کے ساتھ ہوگی، رائٹ. پھر فا کلمہ پر سکون ہوگا. نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ فا کلمہ حالت سکون میں ہوگا، اس پر جزم ہوگی. نمبر 3 عین کلمے پر حرکت ہوگی. عین کلمے پر حرکت مطلب کہ عین کلمے کی حرکت چینج ہوگی، جیسے ہم نے فعل ماضی کے 3 اوزان میں دیکھی تھی، تو فعل مضارع میں بھی سیم لائک دیٹ ہوگی. اور اسی سے ہم فعل کا وزن جو ہے پہچانیں گے. ٹھیک. نمبر 4 لام کلمہ پر پیش ہوگی. تو جو یہ پہلا اور چوتھا پوائنٹ ہے، یہ تو جو ہے فکس ہے حرکات.
आइन कलमे की हरकत चेंज हो गई। अब हम फेल मुजारे की जो गर्दान है कॉन्जुगेशन टेबल इसको समझ लेते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पर बनेगा जो हमारा फेल माजी का पैटर्न बनाने का था। तो फेल मुजारे, अगर हम फेल मुजारे की बात करते हैं तो जो लफ्ज मुजारे है इसका मायने है मुशाबे होना, रिजेम्बलेंस, सिमिलैरिटी। अब फेल मुजारे यानी मुजारे की किससे रिजेम्बलेंस है? इसकी रिजेम्बलेंस है इस्म के साथ, नाउन के साथ। वो अब हम इधर कॉन्जुगेशन टेबल में समझते हैं। ठीक है, हम उसी तरह टेबल ड्रॉ करेंगे जैसे हमने फेल माजी का किया था। ठीक है, और अपनी सारी हेडिंग्स देंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हम मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन से शुरू करते हैं और अलामात मुजारे की पहचान करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन वाहिद मुतकल्लिम देखिएगा, अफ़अलू। यहाँ देखिए वाहिद मुतकल्लिम में अलामत मुजारे अलिफ है। ठीक, फिर है मुसन्ना और जमा मुतकल्लिम के लिए नफ़अलू। अब इन दोनों में आप देखिए कि वाहिद मुतकल्लिम में अलामत मुजारे अलिफ इस्तेमाल हुई और ये पूरी गर्दान में सिर्फ इसी सीगे के साथ आएगी। ठीक है, और फिर अलामत मुजारे नून मुसन्ना और जमा के मुतकल्लिम के सीगों के साथ मिलेगी। राइट, ये दो अलामत हमने पहचान ली, ये इन्हीं सीगों के साथ है। तीसरी अलामत मुजारे है हमारे पास अलामत मुजारे या जो है मुज़क्कर गायब के 3 सीगों और जमा मुन्नस गायब के सीगे के साथ आएगी। ठीक है, मुज़क्कर गायब के देखिएगा यफ़अलू, ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा हो गया, इसमें हुआ ज़मीर फाइल आ गई। ठीक, जब हम मुसन्ना बनाएंगे इसका, तो जैसे मैंने कहा कि मुजारे की रिजेम्बलेंस इसम के साथ है, तो इसका मुसन्ना फिर माजी के मुसन्ना से डिफरेंट बनेगा क्योंकि इसम से रिजेम्बलेंस रख रहा है। तो जो हमने इसम में एक रूल समझा था तस्निया बनाने का, जैसे हमने एक वाहिद इसम को डुअल किया था, वही सेम उसी तरह ये देखिए यफ़अलानी, ये आनी की साउंड इसकी जो है हमें बता रही है कि ये मुसन्ना का सीगा है। हमें एक और बात याद रखनी है कि फेल माजी मबनी होता है और फेल मुजारे मौरब होता है, यानी इसका एराब बदलता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे आएंगे कि फेल मुजारे जो है वो हालत नसब में भी जाएगा और हालत और ये मजजूम भी होगा। देखिए एक इसम होते हैं वो हालत रफा नसब और जर में जाता है, लेकिन जो फेल है उसका एराब कैसे होता है? फेल का एराब ऐसे होता है कि फेल रफा नसब और मजजूम होता है। ठीक है, अब ये यफ़अलानी आनी की साउंड के साथ हमें याद रखना है कि ये फेल मुजारे का जो ये सीगा है ये हालत इसकी रफा है। जमा, देखिए यफ़अलूना, ऊना की साउंड हमने कहाँ पढ़ी थी? जब जमा साले मुजक्कर बनाया। ठीक है, और ये भी जमा का सीगा है प्लस मुजक्कर का सीगा है और अलामत मुजारे या है इस पर। ठीक है, यफ़अलूना जमा मोनस गायब, ये है यफ़अलना। यहाँ हमें लाम कलमा भी साकिन मिल रहा है और ये जो इसका नून है इसे नूने निस्वा कहा जाता है। ठीक है, तो ये अलामत मुजारे या इन 4 सीगों पर आ गई। फिर अलामत मुजारे ता जो हमारे पास बची वो बाकी के 8 सीगों पर आएगी। गायब मोनस के 2 और बाकी 6 हाजिर के सीगे। मोनस गायब के कौन से हैं? तफ़अलू वाहिद मोनस गायब और मुसन्ना का तफ़अलानी। ठीक है, हाजिर की बात करते हैं तो मुजक्कर हाजिर में तफ़अलू। अब यहाँ आप नोट कीजिए कि आप सोचेंगे कि ये तो दोनों ही एक जैसे हैं। ठीक है, वाहिद मोनस गायब और जो हमारे पास वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है तफ़अलू। तो यहाँ हमें इस बात को याद रखना है कि जब वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा आता है, सीगा नंबर 4, तो हमें फाइल जाहिर मिलता है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही होगा कि अगर हमारा सीगा नंबर 4 होगा तो फाइल जाहिर मिल जाएगा, नहीं तो ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा होगा।
आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है, आपसे सवाल किया जाता है कि ये कौन सा सीगा है, तो आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, तो आप दोनों कहेंगे कि ये वाहिद मुअन्नस गायब भी हो सकता है और वाहिद मुजक्कर हाजिर भी हो सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए मुसन्ना का तफ़अलानी, उसी तरह मुसन्ना जैसे ऊपर हमने गायब के सीगों की देखी, और जमा तफ़अलूना, बिल्कुल जमा मुजक्कर गायब की तरह वही पैटर्न। ठीक है, ऊना की साउंड, लेकिन अलामत मुजारे यहाँ पर हमारे पास कौन सी है, ता। ठीक है, ये चेंज आया। फिर बारी आती है वाहिद मोनस, सॉरी, वाहिद मोनस हाजिर के सीगे की। अच्छा, ये सीगा थोड़ा गर्दान में सबसे मुख्तलिफ है, तो इसको अगर हमें याद रखना है कि वाहिद मोनस हाजिर का सीगा फिर मुजारे में कैसे लिखा जाता है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस तरह से याद रखेंगे, जैसे ऊना की साउंड की नस्ब और जर कैसे थी ईना के साथ, तो इसी तरह तफअलूना से तफअलीना, सिर्फ याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा वाहिद मुअन्नस हाजिर हो गया, मुसन्ना तफअलानी, और फिर जमा तफअलना। अब यहाँ देखिए, जैसे हमने जमा मोनस गायब बनाई थी या फलना, यहाँ सिर्फ अलामत मुजारे चेंज हुई और ये हो गया तफअलना। ठीक। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि मुसन्ना के चारों सीगे हमारे पास एक ही पैटर्न पर है। ठीक है, सिर्फ वाहिद, सॉरी, मुसन्ना मुजक्कर गायब का जो सीगा है इसमें अलामत मुजारे या है, बाकी तीनों सीगों में हमारे पास अलामत मुजारे ता है। ये भी याद रखिए कि यहाँ भी ऐसे सीगे आने की सूरत में हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि ये मोनस की बात हो रही है, मोनस गायब की, या मुजक्कर हाजिर और मोनस हाजिर की। तो ये फिर मुजारे की गर्दान थी। तर्जुमा हाल और मुस्तकबिल दोनों तरह से होगा हमारा। ठीक है, और इसमें गर्दान में कोई ऐसी तब्दीली नहीं, हम पे अलामत मुजारे को पहचान लिया। ठीक है, और हमने बाकी चीजें इसकी समझ ली कि सीगे को कैसे पहचानना। आगे चलते हैं। अब जिस तरह से हमने फेल माजी में फाइल और मफूल के रूल्स पढ़े थे कि फाइल हालत रफा में होता है और मफूल हालत नसब में होता है, तो यहाँ भी वही सारी चीजें जो है होंगी। जुमला फेलिया है, रूल्स सेम रहेंगे। ठीक है, पहला और चौथा सीगा आ जाएगा तो आपको फाइल जाहिर मिलेगा, उसके अलावा आपने फाइल गर्दान के बाकी सीगों में से तलाश करना है। मफूल हालत नसब में होगा, मफूल आप हमें फाइल इसम जाहिर की सूरत में भी मिल सकता है, और मफूल हमें अटैच जमीर की सूरत में भी मिल सकता है। ठीक है, जब अटैच जमीर की सूरत में आएगा, आपको कोई अटैच्ड जमीर जो है मफूल बनकर मिल रही होगी, तो वो फेल के साथ अटैच होकर आएगी। राइट। रूट लेटर है राल हा बा, और इसका मुजारे का वजन है यफअलु, यानी ये फेल मुजारे में यफअलु के वजन पर आता है आइन कलमे पर जबर के साथ। अगर मैं कहूँ यज़हबु, तो फिर ट्रांसलेशन होगी वो जाता है, वो जाएगा। मैं कहती हूँ तज़हबूना, अलामत मुजारे ता, ऊना की साउंड, तो जमा मुजक्कर हाजिर, तुम सब जाते हो या जाओगे। अगर मैं कहती हूँ तब हबीना, तो तुम जाओगी या तुम जाती हो, यानी अंती जमीर इसमें फाइल है। ठीक। दूसरा रूट लेटर है मेरे सामने आइन बा दाल, और ये यफ़अलु के वजन पर आता है, इसका फेल मुजारे, तो याबुदु। ठीक, पहला सीगा गर्दान का वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें फाइल जमीर है, वो इबादत करता है या वो इबादत करेगा। इनिशियल लेवल पर आप दोनों तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। अगर मैं कहती हूँ नअबुदु, अलामत मुज़ारे नून, हम इबादत करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, जीम लाम सीन, और इसका फेल मुजारे का सीगा बनता है यफ़इलु के वजन पर आइन कलमे पर जेर के साथ। तजलिसु, वो बैठती है या बैठेगी, अगर हम वाहिद मुअन्नस गायब को लेते हैं, और अगर हम हाजिर के साथ तर्जुमा करते हैं वाहिद मुजक्कर हाजिर के साथ, तो तुम बैठते हो या तुम बैठोगे।
ठीक है। अजलिसु, मैं बैठती हूँ या मैं बैठूंगी। ठीक है। और यजलिसूना, अलामत मुजारे या, ऊना की साउंड, जमा मुजक्कर गायब, वो सब बैठते हैं या बैठेंगे। ठीक। अब हम एक आयत से प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमारे सामने नजर आ रही है। इसमें हम एक्चुअली में आप लोगों को मैं प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ इसकी। तो देखिए, इसमें हम अलामत मुजारे को तलाश करेंगे। तो पहला, सॉरी, इसमें हम फेल मुजारे की जो है आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला हमें फेल मुजारे मिल रहा है ताज आलू, अलामत मुजारे ता। ठीक है। अब यहाँ आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें फाइल जमीर क्या है, तो ये वही सीगा है जो सीगा नंबर 4 और सीगा नंबर 7, वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुजक्कर हाजिर का। आप दोनों ऑप्शंस देंगे। ठीक? फिर दूसरा फेल मुजारे हमें नजर आ रहा है युफसिदु। यहाँ अलामत मुजारिया है। अच्छा, इसकी पेश की हरकत पर अभी आप ना जाएं, क्योंकि हम सिर्फ अलामत मुजारे से फेल मुजारे की पहचान कर रहे हैं। ये आगे जाकर आप पढ़ेंगी कि अलामत मुजारे पर पेश क्यों आई। युफसिदु। अब यहाँ देखिए, अलामत मुजारिया और रूट लेटर क्या निकल रहा है, फा सीन दाल। ठीक है। और तजर्बु में क्या था, अलामत मुजारे ता, और रूट लेटर क्या हमारे पास, जीम आइन ला। फिर हमें एक और मिल रहा है यस्फिकु। यस्फिकु, ये भी गद्दान का पहला सीगा है, जैसे युफसिदु था। हुआ जमीर इन दोनों में फाइल है। ठीक है। यस्फिकु में रूट लेटर है सीन पा का। फिर हमें मिल रहा है नुसब्बिहु, अलामत मुजारे नून, नहनु जमीर फाइल है। ठीक है। जमा मुतकल्लिम का सीगा, और रूट लेटर सीन बा हा। एक और है हमारे पास नुकद्दिसु। नुकद्दिसु में देखिए, यहाँ अलामत मुज़ारे नून, जमा मुतकल्लिम, काफ दाल सीन, इसका रूट लेटर है। नीचे आलमू, और यहाँ अलामत मुज़ारे अलिफ। ठीक है। रूट लेटर आइन लाम मीम, और यहाँ ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। आगे देखिए, तालमूना, तो तालमूना में अलामत मुजारे ता, ऊना की साउंड, जमा मुजक्कर हासिल। ठीक है। फेल मुजारे को मनफी बनाना और सवालिया बनाना, इसको देख लेते हैं। फेल मुजारे को मनफी बनाने के लिए ला लगाया जाता है, ला का इस्तेमाल किया जाता है। इससे फेल मुजारे जो है वो निगेशन में चला जाता है। ला जब आता है फेल मुजारे के साथ, तो हमें ट्रांसलेशन हाल और मुस्तकबिल दोनों में करनी है। वहां हम कॉन्टेक्स्ट से डिसाइड करेंगे कि हाल में करनी है या मुस्तकबिल में करनी है। ठीक है। लेकिन जब ला आ जाएगा, तो हम हाल में भी कर सकते हैं और हम मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं। ठीक। और फेल मुजारे में कोई अराबी तब्दीली नहीं आती। जैसे मैंने आपको कहा कि फेल मुजारे में एराब की तब्दीली होती है, तो ला कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं है। फिर फेल मुजारे को सवालिया बनाने के लिए हरूफ इस्तिफाम, हमजा और हल का इस्तेमाल किया जाता है। इससे फेल मुजारे में कोई तब्दीली नहीं आती। फिर और हमजा और हल उसी तरह इस्तेमाल होंगे जैसे हमने जुमला इस्मिया में किए थे, फेल माजी में किए थे। ठीक है। अस्मा इस्तिफाम आएंगे तो सेम उसी तरह हम इनको जो है जुमला, सॉरी, फेल मुजारे को सवालिया बनाएंगे इन्हीं अस्मा इस्तिफाम के जरिए। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ मैंने आपके साथ हमजा और हल का इस्तेमाल शेयर किया है कि ये हम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है तो ये हरूफ, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत वसी है, कसीर है। ठीक है। तो इनको हम समझते हैं, एक एक करके जितनी स्लाइड्स हैं उनको हम आसानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं।
हमजा तो देखिए, इसका पहला पॉइंट है कि जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया दोनों पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी हमने इसको समझा था कि जुमला इस्मिया को भी सवालिया बना सकता है और फेलिया को भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे है हमारे पास असजुदू, क्या मैं सजदा करूं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि ये हमें बताया जा रहा है कि असजुदू फेल मुजारे है। ठीक है, और इससे पहले हमजा इस्तिफाम आ गया। ठीक, दूसरी एग्जांपल है अंत फअलता। अब यहाँ ये हमजा इस्तिफाम के बाद हमें जमीर मरफू मुनफसिल मिल रही है जो कि मुब्तदा बन रही है। फअलता, सॉरी, हाँ, अंत फअलता। तो यहाँ देखिए ये हमजा इस्तिफाम है, इसके बाद हमें अंता जमीर मिल रही है। ये जमीर मरफू मुनफसिल है जो मुब्तदा बनती है, और फ़अलता ये फेल माजी, अंता जमीर इसमें फाइल है। ठीक है, ता हमें बता रही है। तो अब यहाँ ये जो फेल अपने फाइल के साथ जो है ये जुमला फेलिया बनकर ये खबर बन जाएगा अंता है। ठीक है, और ये मुब्तदा अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया, और इसको हमने जो सवालिया जुमला बनाया हमजा इस्तिफाम के जरिए। ठीक है, क्या तूने ऐसा ही किया। अच्छा, अब हल ये भी जुमला इसमें और फेलिया दोनों पर इस्तेमाल होता है। पहले एग्जांपल क्या है, हल यस्माऊनकुम इस्तदऊना। हल हरफ इस्तिफाम है, यस्माऊना फेल मुजारे, अलामत मुजारे या देखिए, ऊना की साउंड, जमा मुजक्कर गायब का सीगा। ठीक है, अटैच्ड उम की जमीर इसमें मफूल है। क्या वो तुम्हारी सुनते हैं जब तुम पुकारते हो। हल फी ज़ालिका कसमुल लज़ी हिज्रिन। आगे देखते हैं। अच्छा, अगला इसका जो पॉइंट है ये देखिएगा कि हमजा इस्तिफाम हरूफ अतफ से पहले इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर आ, जब अगर हमें जुमले में कोई हरफ अतफ आ रहा है तो हमजा इस्तिफाम से पहले आएगा। अफहसिब तुम, तो क्या तुम सब ने गुमान कर लिया। ठीक है, अब ये फा हरफ अतफ है, हसिब तुम फेले मासी है। तो यहाँ हमजा फिर इन्ना से पहले आया, क्या वाकई तुम ही यूसुफ हो। ठीक है, फिर हाल जो है ये हरूफ अतफ के बाद आता है। ठीक है, फहल वजद तुम। अब यहाँ फा हरफ अतफ है और हाल जो है ये हरफ इस्तिफाम है, तो हाल जो है हरफ अतफ से पहले नहीं है। ठीक है, फिर इसकी एक और एग्जांपल, आगे एक और स्लाइड देखते हैं कि हमजा इस्तिफाम मनफी जुमले पर आ सकता है। अलम तरा कैफा फअल रब्बुका। आ हमजा इस्तिफाम, लम हरफे जाजमा। ठीक है, फेल मुजारे को मजसूम करता है, भी आगे इसको आगे हम सीखेंगे। ठीक है, तो क्या आपने नहीं देखा कैसा सलूक किया आपके रब ने। ठीक है, फिर हाल जो है देखिए कि ये नफी के साथ इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन हर और इल्ला का इस्तेमाल जब होता है तो फिर वो नफी का मफहूम आता है। सूरह अर्रहमान की आयत है, फहल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। नेकी का बदला नेकी के सिवा नहीं। ठीक है, तो यहाँ हल के साथ जब इल्ला आया तो ये नफी के मफहूम में जुमला चला गया, लेकिन ये एक पॉजिटिव किस्म की नफी होगी। ठीक है, फिर हमजा ये शर्त के साथ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, और इसके साथ हमें मफूल मुकद्दम भी मिल सकता है। राइट, तो आ मुहम्मदन राईता, क्या मोहम्मद को तुमने देखा। या मुहम्मदन हालत नस्ब में है,
یہ رأیتا کا مفعول ہے اور مقدم کیا گیا. مفعول جب مقدم ہوتا ہے تو وہاں ایمفسس آتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ کیا محمد کو تم نے دیکھا؟ اور ٹرانسلیشن بھی ایسے ہی کریں گے کیونکہ مفعول مقدم ہے تو ہم اس کو اردو ٹرانسلیشن میں بھی مقدم ہی رکھیں گے. پھر حل جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی کو مستقبل میں لے جاتا ہے، لیکن حل مفعول مقدم پر استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، حل یجزون الا ما كانوا يعملون، کیا ان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے. اب ہم فعل مضارع کو منفی بنانے کی کچھ ایگزامپلس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جملہ ہے یفتح ابن زید باب الغرفتی. زید کا، اب ہمیں اس کی جب نگیشن لانی ہے تو ہم لا لے کر آئے اور دیکھیں لا یفتح ابن زید باب الغرفتی. اب یہاں دیکھیے لا کے آنے سے فعل مضارع میں کوئی چینج نہیں آیا. زید کا بیٹا کمرے کا دروازہ نہیں کھولتا. یفتح گردان کا پہلا صیغہ ہے. ابن زید مرکب اضافی حالت رفع میں فاعل بنے گا. باب الغرفاتی یہ مرکب اضافی حالت نصب میں مفعول. دوسری اگزامپل ہے تدخلان المدرسۃ اليوم. تدخلانی علامت مضارع تا، آنی کی ساؤنڈ. ٹھیک ہے، ڈھول کا صیغہ ہے اور یہاں ہم اس کو جو ہے مثنیٰ مذکر حاضر لیں گے. ٹھیک ہے، المدرسۃ حالت نصب میں یہ مفعول بھی ہے، آپ مفاعیل خمسہ پڑھ چکی ہیں. الیوم ظرف ہے تو یہ یہاں مفعول فیہ بنے گا. تم دو مذکر آج مدرسے داخل نہیں ہوگے تو ہم لا کے ساتھ نگیشن کریں گے اس کی. لا تدخلان المدرسۃ اليوم. آگے دیکھتے ہیں کیا تو، یعنی مذکر سے سوال کیا جا رہا ہے کیا تو آج اپنے گھر کا دروازہ کھولے گا. تو ہم کریں گے سوال کے لیے کیا استعمال کریں گے. ہمارے پاس آپشنز ہیں، دیکھتے ہیں. تفتح بابا بیتک اليوم، ماں یا حل، تو ہم حل کے ذریعے سوال کریں گے. حل تفتح بابا بیتک اليوم. آگے دیکھیے، اب مؤنث سے جمع مؤنث سے سوال کیا جا رہا ہے کیا تم آج مدرسے میں کھانا کھاؤ گی. تأکلن الطعام فی المدرسۃ اليوم. تو ہم سوال کیسے کریں گے، من کے ذریعے یا حل کے ذریعے. تو ہم یہاں بھی سوال حل کے ذریعے کریں گے. حل تأکلن الطعام فی المدرسۃ اليوم. میں آج اپنے گھر کیسے جاؤں. اذهب الى بیتی اليوم. اب آپشنز ہے کیفا اور اینا. کیفا آتا ہے کیسے، اینا آتا ہے کہاں. کیفا اذهب الى بیتی اليوم. پھر اب مؤنث سے سوال کیا جا رہا ہے، واحد مؤنث حاضر سے. ٹھیک ہے، تیرے ابا کہاں جاتے ہیں. تیرے ابا کہاں جاتے ہیں، تو اب یہاں پر جو ہے جانے کا کام جو ہے فاعل ہے وہ ابا ہیں. ٹھیک ہے، اور تیرے ابا یہ ہمارا یہاں پر مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، تو یذهب ابو کی کس سے سوال ہوگا، حمزہ یا اینا سے. تو اینا ظرف مکان. ٹھیک ہے، اینا یذهب ابو کی. ابو کی مرکب اضافی ابو کیا ہے، ہم نے جو 5 اسپیشل ناؤن پڑھے تھے نا ان میں سے ہے ابن، اخن، امن، فمن اور ذو. ٹھیک ہے، تو ابو، ابا، ابی. ٹھیک ہے، تو یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ تیرے ابا کہاں جاتے ہیں. ہمارے استاد مدرسے کب لوٹیں گے. یرجع معلمون المدرسۃ. سمپل جملہ بنایا ہم نے پہلے، اور اب ہم کب کے لیے کیا لے کر آئیں گے، کیفا یا متا. ہم لائیں گے متا. متا یرجع معلمون المدرسۃ.
मुअल्लिमूना, ये क्या है? ये मुरक्कब इजाफी है, मुअल्लिमूना था, नून इराबी ड्रॉप है क्योंकि मुजाफ बन रहा है। ठीक है। और ये मुरक्कब इजाफी यहाँ पर यरजिउ के लिए फाइल है, अलमदरसा का मफूल है। वो आज क्या कुछ खर्च करेंगे, देखिएगा, युनफिकूनल यौमा। तो अब पूछा जा रहा है क्या कुछ, तो ऑप्शंस क्या है, माजा और हल। तो जब माजा आता है ना, तो हम इसको बमानी अयु शयीन लेते हैं, तो हम कहेंगे माजा युनफिकूनल यौमा। ठीक है। हामिद और जैद अपने भाई से क्यों झूठ बोल रहे हैं? पहले सिंपल जुमला बनाया, यकदिबु हामिदुन व जईदुन अखाहुमा, तो लिमा और मन। अब क्यों के लिए आता है लिमा, लिमा यकदिबु। ठीक है। अब हम सीखते हैं अब्वाब सुलासी मुजर्रद। सुलासी का मतलब है तीन, मुजर्रद का मतलब है ऑनली, यानी हम उन अब्वाब की स्टडी कर रहे हैं कि जिनमें सिर्फ हमें तीन रूट लेटर्स मिलते हैं। ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले हम फेल की तकसीम को समझ लेते हैं कि फेल को तीन तरह से डिवाइड किया गया, फेल बिलिहाज जमाना, फेल बिलिहाज तादाद हरूफ, और फेल बिलिहाज हरूफ। जब जमाने की बात की जाती है तो फेल माजी और फेल मुजारे दो ही जमाने हैं अरबी में। ठीक है। बिल लिहाज से तादाद हरूफ, यानी यहाँ उस फेल के जो रूट लेटर्स है उसकी बेस पर फेल को डिवाइड किया गया, तो इसको डिवाइड किया गया फेल सुलासी मुजर्रद और फेल मजीदुन फी। सुलासी मुजर्रद हम पढ़ने लगे हैं कि वो जिनमें सिर्फ तीन रूट लेटर आते हैं। फेल मजीदुन फी, इसमें हम वो पढ़ेंगे जो रूट लेटर्स के अलावा एडिशनल हरूफ भी आते हैं। फिर फेल की तकसीम की गई हरूफ के एतबार से, सही फेल और गैर सही फेल, ये आप लोग वैसे पढ़ चुके हैं, तो ये बेसिक पर था, तो इसलिए इसको मैंने आपके साथ चार्ट पे शेयर किया। हमने फेल माजी के तीन औजान पढ़े थे, फ़अला फ़अइला फ़अउला। इसी तरह हमने फेल मुजारे के तीन औजान पढ़े, यफ़अलु यफ़इलु यफ़उलु। तो स्कॉलर्स ने इन तीनों औजान माजी और मुजारे के, इन तीनों औजान के कॉम्बिनेशंस बनाए और उनको जो है अबवाब का नाम दिया। उन कॉम्बिनेशंस को कैसे बनाया गया, देखिएगा। पहला कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया कारुमा यकरुमु। ठीक है। तो इसका देखिए माजी में क्या आ रहा है, फाउला, और मुजारे में यफउलु। राइट। अब इस उन्होंने कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया, उन्होंने फिल माजी के जो सीगा है उसका पहला हर्फ काफ ले लिया, तो ये है बाप काफ। इसको चैप्टर काफ भी कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह से भी आपके लिए आसानी है। फिर समीआ यस्माउ, फाइला यफअलु, ये कॉम्बिनेशन बनाया, इसको उन्होंने बाप सीन का नाम दिया। हासिबा यहसिबु, फाइला यफइलु, ये कॉम्बिनेशन इन्होंने इधर बनाया और इस बाप को उन्होंने नाम दिया हा। फिर फतहा यफ्ताहु, ठीक है, फ़अला यफ़अलु का कॉम्बिनेशन बना और इस बाप को नाम दिया बाप फा। फिर दौराबा यदरिबु, फ़अला यफ़इलु, इस कॉम्बिनेशन को उन्होंने बाप दुआत का नाम दिया और इस बाप का बहुत इस्तेमाल है। ठीक है। फिर बाप आता है, फिर आगे देखिए कॉम्बिनेशन नासारा यंसुरु और फ़अला यफ़उलु, इस बाप का भी आपको बहुत इस्तेमाल मिलेगा। इस बाप को नाम दिया बाप नून। तो बाप काफ, बाप सीन, बाप हा, बाप फा, बाप वाद, बाप नून, ये हमें याद रखते हैं। इनके माजी मुजारों के औजान यानी वजन पैटर्न्स हमें याद होने चाहिए। ठीक है। जब भी आप कोई रूट लेटर इनके माजी मुजारे बनाएंगी तो आप उसको बोलें, माजी को भी बोलें, मुजारे को बोलें, और उस बाद में उसके बाप का नाम जरूर लें, इससे आपको याद रह जाएंगी ये चीजें। इधर हम ये आपके सामने कुछ रूट लेटर्स हैं और उनके साथ उनके बाप है और फिर उनका माजी मुजारे का पहला पहला सीगा और उनके
मस्तरी माने ये नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर मुजारे में ताकीद कैसे लेकर आई जाती है देखते हैं। फिर जैसे हमने जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा की थी, फिर माजी में कद के जरिए ताकीद पैदा की थी, इसी तरह फिर मुजारे में भी ताकीद पैदा की जाती है। तो इसमें ताकीद पैदा करने के दो तरीके हैं। नून खफीफा और नून थकीला का इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने फेल है यफ़अलु। अगर इसमें मुझे ताकीद पैदा करनी है तो इसके आखिर में जो नून साकिन है ना, उस उसका इजाफा किया जाएगा। इस नून साकिन को नून खफीफा कहा जाता है। और जो आखिरी हर्फ है फिर मुजारे का, जिस पर हमने लाम कलमे पर पेश पड़ी थी, उसको जबर के साथ बदल दिया जाता है। ये हो जाएगा यफ़अलना। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वो जरूर मदद करेगा। ठीक है। अब इसमें एक डबल ताकीद लानी है तो हम इसके शुरू में एक लाम लगा देंगे, तो हो जाएगा ला यफ़अलन। ठीक है। ला यफ़अलन, नून खफीफा आया, फिर शुरू में लाम भी आ गया, तो ट्रांसलेशन कैसे होगी, वो जरूर भी जरूर मदद करेगा। ठीक है। अच्छा, अब मजीद ताकीद लानी है। एक ताकीद तो हम नून खफीफा से लेकर आए, अब हमें एक ज्यादा एम्फोसिस लेकर आना है, तो हम उस नून खफीफा की जगह नून मुशद्दद लगा देंगे, उसे नून सकीला कहते हैं। तो ये हो जाएगा यफ़अलन्ना। ठीक है। तो वो जरूर भी जरूर मदद करेगा। जब नून मुशद्दद आ जाएगा तो आपको और वहां पर बिल्कुल आपके जहन में आना चाहिए कि यहाँ ज्यादा ताकीद है, ताकीदी उसलूब से आता है। ठीक है। और फिर अगर हमें बहुत ज्यादा ताकीद लानी है तो फिर लाम का इस्तेमाल करेंगे, ला यफ़अलन्ना। ये इंतहाई ताकीदी उसलूब है। ठीक है। और कुरान मजीद में भी आपको इनका इस्तेमाल मिलेगा। ट्रांसलेशन कैसे करते हैं हम, जब फिर मुजारे में ताकीद लाई जाती है तो हम करते हैं, या तो वो लाजमन करेगा लाजमन के साथ, या जरूर भी जरूर के साथ करेंगे। ठीक है। जो नून मुशद्दद है इसे नून सकीला कहते हैं, ये नून भारी है। और नून खफीफा को, सॉरी, जो नून साकिन हम लगाते हैं फिर मुजारे में ताकीद के लिए, उसे नून खफीफा कहते हैं, और ये नून हल्का है। ठीक है। अब ये इनकी गर्दान है आपके सामने, इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। और पहला सीगा है ला यफ़अलन्ना, और चौथा सीगा लतफ़अलन्ना। ठीक है। यहाँ ज़बर है। ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। फिर हमारे पास है नून खफीफा की गर्दान। ठीक है। इसमें हमारे पास जो डुअल के सीगे में इस्तेमाल होंगे, जमा मोनस हाजिर और जमा मोनस गायब का सीगा भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक। अब देखिए कि कुरान मजीद में जब हमें नून खफीफा मिलता है तो उसका जो नून साकिन है उसको तनवीन से बदल दिया जाता है। ठीक है। तो इसको हम जैसे रस्मुल खत कहा जाता है, इसको ऐसे ले सकते हैं। जैसे ला यकूनन, इसको इस तरह लिखने की बजाय इस तरह भी तनवीन के साथ लिखा जाता है, ला यकूनन, वो जरूर होगा। ठीक है। या ला नस्फ़अन, तो इसको भी इसी तरह से तनवीन के साथ लिखा जाएगा, हम जरूर घसीटेंगे। आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स। लतदखुलूनल मस्जिदल हरामा। अब यहाँ नूने सकीला आया, उससे पहले पेश है अलामत निज़ार ता है, तो ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। ठीक है। हम नून से पहले वाली हरकत को देखेंगे, सिंगल होगी तो वो वाहिद का सीगा होगा। ठीक है। और फिर आप अलामत निज़ारे देखेंगे, और फिर जमा होगी तो वो पेश के सीगे के साथ मिलेगी। ठीक है। और अलामत मुजारे से हम उसका फाइल की पहचान करेंगे। तुम लाजमन या जरूर भी जरूर मस्जिद हराम में दाखिल होगे। लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, यहाँ देखिए अजीदन्ना। ठीक है? ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। और यहाँ ये इन्होंने आपको
सकीला मिल रहा है। ठीक, अटैच्ड कौन की ज़मीर मफूल भी ही है। अगर तुम शुक्र करोगे तो हम लाजमन या जरूर भी जरूर तुमको नेमतों में बढ़ा दें। ठीक है, आगे देखिएगा, मुजारे के तगय्युरात, यानी मुजारे में कैसे चेंजेस आते हैं। फेल मुजारे खफीफ या फेल मुजारे मंसूब। पहली सिचुएशन ये है कि फेल मुजारे मंसूब कैसे होता है। इसको खफीफ भी कहा जाता है, जो कि एक प्रॉपर टर्म है। आपको अगर कहा जाए फेल मुजारे खफीफ, तो आपके जहन में आ जाना चाहिए कि यहाँ फेल मुजारे मंसूब की बात की जा रही है। ठीक है, अब फेल मुजारे कैसे मंसूब होता है, तो इसके लिए हम इसको सीखते हैं। पहले गर्दान में कैसे चेंजेस आएंगे। गर्दान के जो 14 सीगे हैं उनको मैंने 3 तरह से डिवाइड किया है इधर आपके सामने। पहली रो में वो सीगे जिनके आखिर में हमें पेश मिल रही है। दूसरी रो में वो सीगे हैं जिनके आखिर में हमें नून मिलती है। और तीसरी रो में हमारे पास है जमा मोनस गायब और जमा मुजक्कर, सॉरी, जमा मोनस गायब और जमा मोनस हाजिर का सीगा है। ठीक है, पहली रो में हम देखते हैं जब तो हमें लाम कलमे पर जो पेश है, वो वाले सीगे, जब फेल मुजारे मंसूब होता है तो वो पेश जबर में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो यफ़अलु से यफ़अलु, और इसी तरह बाकी चेंजेस है। दूसरी रो में नून वाले जो सीगे हैं, जब फेल मुजारे खफीफ होता है या मंसूब होता है तो फिर वो नून ड्रॉप हो जाती है। जैसे यफ़अलानी से यफ़अला, और तफ़अलानी से तफ़अला, सो ऑन। फिर जमा मुजक्कर गायब को देखिए, यफ़अलूना। यहाँ क्या है हमारे पास कि अ, जब यहाँ ये सीगा मंसूब होगा या खफीफ होगा तो नून तो ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन इसकी जगह एक खाली अलिफ लेकर आया जाएगा किताबत के लिए। ठीक है, फिर आगे हम अलामत मुजारे से पहचानेंगे इसके फाइल को। फिर आ जाता है तफ़अलूना। तफ़अलूना में भी नून राबी ड्रॉप होगा, उसकी जगह एक खाली अलिफ लेकर आएंगे। ठीक है, फिर आखिरी सीगा है तफ़अलीना, वाहिद मुन्नस हाजिर का। इसका नून राबी ड्रॉप हो जाएगा और ये बन जाएगा तफ़अली। तीसरी रो में दो सीगे बचे, और आपको नजर आ रहा है कि इसके बाद हमने कोई इसकी चेंज होने वाली फॉर्म नहीं लिखी कि ये किस तरह से खफीफ या मंसूब हुआ। तो बात यह है कि ये वो दो सीगे हैं जिन जो किसी किस्म का कोई इफेक्ट जो है एक्सेप्ट नहीं करते, ये सेम रहेंगे। राइट, अब हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे हरूफ हैं, फैक्टर्स हैं जो फिर मुजारे को मंसूब करते हैं या खफीफ करते हैं। उन हरूफ को हरूफ नास्बा कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने है लन, अन, कई, फिर है इजन, और ये ली। इस ली को जब हम देखते हैं तो आप देखें, आपको ये लामे जारा लगेगा। जी, है तो ये लामे जारा ही, लेकिन देखिए इसके आगे मैंने ब्रैकेट में अन लिखा है। इस अन लिखने की वजह ये है कि जब भी आपको ये फिर मुजारे से पहले ये लाम आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसके बाद जो स्कॉलर्स हमें समझाते हैं कि यहाँ एक अन महसूफ होता है। ठीक है, तो ये वो अन जो यहाँ माजूफ है असल में वो फेल मुजारे को मंसूब करेगा। ठीक है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। ठीक है? और इनके जो सारी डिटेल है वो हम अगली स्लाइड में इस्तेमाल देखते हैं कि किस तरह से आते हैं। फिर है हत्ता। हत्ता भी हरफे जा रहा है, और हम जानते हैं कि हरफे जा रहा है जो है वो सिर्फ मजरूर करते हैं इसम को, लेकिन यहाँ फेल मुजारे से पहले आ रहे हैं। तो इसके बाद स्कॉलर्स ने इस अन को महसूफ माना, और फिर जिसकी वजह से फेल मुजारे जो है मंसूब हुआ या खफीफ हुआ। ठीक है, हत्ता और ली ने नहीं किया, वो तो हरूफे जा रहा है, उनका तो अपना ही काम है। ठीक है, अच्छा, इस्लाम को हम जो है वजह बताने के लिए आता है ना, इसे लामे कई भी कहते हैं, और ये लामे तालील भी कहलाता है। ठीक है, इसके दो नाम है, ये दोनों आप लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ एक और बात आप जहन में रखें कि ये ली और ये कई, इनका इस्तेमाल एक ही तरह से है। ठीक है, ये ली भी आता है, कई भी आता है, और ली कई के साथ भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, तीनों तरह से आपको ये मिल जाएगा, इकट्ठे भी दोनों मिलेंगे।
तो हरूफ नास्बा और उनके इफेक्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले है लन, इसे हरफ नफी कहा जाता है, हरगिज नहीं के साथ इसकी ट्रांसलेशन की जाती है। और इसको हरफ नसब व तौकीद व जहद भी कहा जाता है, ठीक है। और ये मंसूब करता है जोरदार, नफी मानी मुस्तकबिल में, ठीक है। फिर अन, इसे हरफ मस्दरी भी कहा जाता है। ये क्या असर करता है, ये फिर मुजारे को मंसूब करेगा और उस फिर मुजारे के साथ मिलकर उसका जो तर्जमा है वो मस्दर के मायने में कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ एक और बात को अम, याद रखना है कि जब भी अन किसी फेल के साथ आता है तो फिर उसे मस्दर मोवल कहा जाता है, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को। फिर है कई। कई जो है ये ताके का मफहूम देता है और ये फेल के बाद आकर फेल का मकसद बयान करता है, ठीक है। हालत नस्ब में तो ले जाता है लेकिन ये अपने से पहले फेल की वजह बताता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है हमारे पास इजन या इजन, ये दो तरह से लिखा जाता है, ये हरफ जवाब है, ठीक है। और फिर इसको ट्रांसलेट हम कैसे कहते हैं, तब तो या फिर तो। ये किसी बात के जवाब में आता है और इसका मायने मुस्तकबिल में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं। फिर है हत्ता। हत्ता वही यहाँ तक के, ठीक है। हत्ता के बाद फेल मुजारे मंसूब मिलता है और वहाँ अन महसूब होते हैं। सेम लाम, लामे तालील या लामे कई, यहाँ भी अन महसूब मिलेगा और ये लाम वजह बताने के लिए आता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमर तुहु अन यक, अमर तुहु, एग्जाम्पल देखते हैं। अमर तुहु अन यकतुबा, अब यहाँ देखिए अन आया और फेल मुजारे मंसूब हो गया, ठीक है। मैंने उसे हुक्म दिया कि वो लिखे। फिर है इजन तफरहा उम्मुकी। इजन क्या है, इजन यहाँ हरफ नास्बा है, इसकी वजह से फेल मुजारे मंसूब हो रहा है। तब तो तुम्हारी वालदा खुश हो जाएंगी, ठीक है। ली यकतुबा, ठीक है। लाम लामे कई आ गया, फिर मुजारे मंसूब है, ताकि वो लिखे। फिर हत्ता यकतुबा, अब देखिए हत्ता आया और आपने देखा फिर मुजारे मंसूब है। तो अब यहाँ आप क्या लॉजिक देंगी, क्या रीजन देंगी कि फिर मुजारे से पहले अन महजूफ है, ठीक है, यहाँ तक के वो लिखे। अगली एग्जांपल है लन यदखुलल कुफ्फारु फिल मस्जिदी। अब लन हरफे नासबा आ गया और फिर मुजारे मंसूब है। सब काफिर हरगिज मस्जिद में दाखिल नहीं होंगे। अब देखिए लन आया, ट्रांसलेशन ताकीदी हो गई हरगिज, और यहाँ नफी में चली गई नहीं, और होंगे मायनी, और फिर इसका जो जमाना है वो मुस्तकबिल में चला गया। फिर अगली एग्जांपल है यकरउल औलादुल कुरआना फिल मदरसती कई यफहमूहु, ठीक है। अब यहाँ कई आया और ये जो पहले फेल आए यकराऊ, उसकी वजह बता रहा है कि लड़के मदरसे में कुरान पढ़ते हैं ताकि उसे समझें। आगे देखते हैं फेल मुजारे मजजूम और अखफ, और दूसरा टॉपिक है इसी में हमारे पास फेले नहीं, ठीक है। अब फेल मुजारे मजजूम जब आएगा तो उसको अखफ भी कहा जाता है। जब भी आपसे फेल मुजारे अखफ कहा जाए तो आपको याद रखना है कि यहाँ फेल मुजारे मजजूम की बात की जा रही है। हमने जो हमारी फेल मुजारे की गर्दान है उसको उसी तरह से हमने जो है डिवाइड किया रोज में। करना क्या है, जो पेश वाले सीखे हैं, ठीक है, उनकी पेश को हटाकर उसको मजूम कर देंगे फेल को। यफअल, यफअलु से यफअल, ठीक है। फिर जिन सीगों के आखिर में नून था, मजूम करते हुए भी वो नून ड्रॉप हो जाएगा। यफअलानी से यफअला, तफअलानी से तफअला। इसी तरह जमा मुजक्कर गायब का सीगा था जो यफअलूना, उसका नून ड्रॉप करेंगे और उसकी जगह एक किताबत का अलिफ ले आएंगे। तफअलूना भी इसी तरह,
और तफअलीना में भी नून इराबी ड्रॉप हो जाएगा। फिर यही दोनों जमा मोनस के सीगे सेम रहेंगे, इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। हरूफ जाज़मा कहा जाता है जो हरूफ जो है फेल मुजारे को मजूम करते हैं। ये है लम, लम्मा, इन और ली। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी ली आ गया है, इस ली को भी हमने देखना है, ये ली कौन सा है। देखिएगा, हरूफ जाज़मा लाम, इसे हरफ नफी कहा जाता है, फेल मुजारे को मजूम करता है, मनफी मफहूम लेकर आता है और माजी के साथ खास करता है। फिर है लम्मा। लम्मा जो है इसका मतलब है अभी तक नहीं, ये भी फेल मुजारे को मजूम करता है, मनफी मफहूम लेकर आता है, और जब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो हम कहते हैं अभी तक नहीं। ठीक है, यानी ये काम अभी तक नहीं हुआ। इन हरफ शर्त कहलाता है, फिर मुजारे को मजूम करता है। अच्छा, इसके बाद हमें दो जुमले मिलते हैं, और इन जिस जुमले पर आता है वो जुमला शर्तिया कहलाता है। ठीक है, और जुमला शर्तिया के दो हिस्से होते हैं, एक शर्त और दूसरा जवाबी शर्त। ठीक। अच्छा, फिर है ली, इसे लामे अमर कहते हैं, चाहिए के साथ ट्रांसलेशन की जाती है। फेल मुजारे को मजूम करेगा, चाहिए का मफहूम देगा, और फेल का मस्तरी मायना में ट्रांसलेशन की जाएगी। ठीक है। फिर हमने बहुत सारे लाम पढ़े हैं, तो देखिए, पहला लाम हमने जो सबसे सीखा था वो था लामे तारीफ। ठीक है, और ये इसम के साथ आता है, मार्फा बनाता है, साकिन होता है। दूसरा लाम हमने पढ़ा लामे जारा ली, इसम के साथ आता है, इसम को मजरूर करता है। जब ये इसम के साथ आएगा तो जेर के साथ लिखा जाता है, जमीर के साथ आएगा तो ये लाम लामे जारा जो है जबर के साथ लिखा जाएगा, जैसे लहू। अच्छा, लामे ताकीद, ये लाम जबर के साथ लिखा जाता है, ये इसम फेल हर तीनों के साथ आता है और जबर के साथ। लामे कई या ये ली, ये फेल मुजारे के साथ आता है, मंसूब करता है, ताके का मफहूम देता है, और ये जेर के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो ये लाम की कुछ इकसाम थे आपके सामने। अब बात है कि लामे अमर किन सीगों पर आता है, तो लामे अमर सिर्फ गायब और मुतकल्लिम के सीगों पर आता है। ठीक है, एक कॉन्जुगेशन टेबल बना लें, उसमें जो गायब के सीगे हैं उनको हाईलाइट कर लें, उनके साथ आप जैसे हमने भी गर्दान बनाई या फालू। ठीक है, तो लामे अमर आएगा, मजूम करेगा, तो आप क्या उसको करेंगी कि उसके जो आप हाँ, आप ऐसा कीजिए, आप उसके जो गायब के सीगे हैं उनको लाम के साथ लिखें। ठीक है, लियफ़अल, ठीक है, लियफ़अला, लियफ़अलू, इस तरह से करके आप 6 सीगे गायब के लिख लें, मुतकल्लिम के सीगों को मजूम करें, लामे अमर डाल उसके साथ अटैच करें। ठीक है, तो आपको इस तरह से गर्दान जो है याद रहेगी कि लामे अमर किन सीगों पर आता है, हाजिर के सीगों पर ये नहीं आता। ठीक है, देखिएगा, यफ़अलू फेल मुजारे मरफू है, वो करता है या करेगा। ठीक है, ली यफ़अल, अब यहाँ देखिए लामे अमर आ गया ना, उसे मजूम कर दिया, फेल मुजारे मजूम, उसको करना चाहिए। तो इसी तरह आप ये 6 सीगे बना लें बताने। फिर नीचे मुतकल्लिम के सीगे लिखे, उन्हें मजूम करे, लामे अमर लगाए, तो ली अफ़अल फेल मुजारे मजूम, मुझे करना चाहिए। तो एक गर्दान ऐसे बना लेंगी ना, आपको याद रहेगा कि लामे अमर किन सीगों पर आता है। लामे अमर और लामे कई में क्या फर्क है, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे हैं। तो लामे अमर से पहले अगर हरफे अतफ आ जाए, वाओ या फा, तो वो साकिन हो जाता है, जबकि लामे अमर लामे कई की जेर बरकरार रहती है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, वली याबुदू, असल में याबुदू ना था, लामे कई आया, उसने इसको मंसूब किया। ठीक है, और देखिए पीछे हरफ अतफ वाव है, तो लाम की हरकत उसकी जेर बरकरार है। ठीक है, और ताकि वो बंदगी करे। अगला है वल याबुदू, अब वाव के बाद देखिए लाम साकिन हो गया, तो ये लाम लामे अमर है और फेल मुजारे मजूम हो रहा है, और उन्हें बंदगी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये फर्क है। फेल नहीं, ठीक है, इसे लाए नहीं भी कहते हैं।
इसको मैंने मजूम के टॉपिक में इसलिए आपके साथ डिस्कस कर लिया कि यहाँ ये भी फेल मुजारे को मजूम करता है। ठीक है। हमने ला पढ़ा है, लाए नफी जिन्स। वो कैसा ला है कि वो इसम के साथ आता है, उसके बाद जो इसम आता है वो बगैर तनवीन के होता है, मंसूब होता है और नकरा इसम होता है। फिर हमने एक ला नफी का पढ़ा, वो फेल मुजारे को नफी यानी निगेशन करने के लिए उसकी आता है, उसको मनफी बनाने के लिए आता है। ठीक है। अब लाए नहीं क्या है, ये किसी शख्स को किसी काम से मना करने के लिए, रोकने के लिए आता है, इसे लाए नहीं कहते हैं। ठीक है। और जिस फेल पर आता है उसे फेले नहीं कहते हैं। ये फिल मुजारे को मजजूम करता है और लाए नहीं मना और रोकने के लिए आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गर्दान के किन सीगों पर आता है। तो ये लाए नहीं पूरी गर्दान पर दाखिल होता है, गायब हाजिर मुतकल्लिम। इसके लिए भी ऐसे ही कीजिए, याद दहाने के लिए गर्दान बनाएं, लाए नहीं का इस्तेमाल करें और फेल मुजारे को मजूम कर दें। ठीक है। तो ये यफ़अलु से ला यफ़अल हो जाएगा, ला तफ़अलु से ला तफ़अल हो जाएगा और अफ़अलु से ला अफ़अल हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरी गर्दान पर आता है। देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है ला तफ़अलु। अब ये ला आया, हमने फेल मुजारे को देखा, वो तो हालत रफा में है, मरफू है। ठीक है। तो हम कहेंगे ये ला सिंपल ला है, तू नहीं करता है या करेगा। अगली एग्जांपल देखिए ला तफअल। अब यहाँ देखिए ये ला जो आया इसने फिर मुजारे को मजूम कर दी, तो इसका मतलब है ये लाए नहीं है। और तफअल को हम कहेंगे ये फेले नहीं है, यानी तू मत कर। अब यहाँ रोका जा रहा है किसी काम से। ठीक है। एग्जाम्पल देख लें यकतुब। अब यहाँ ये लाम आया, आपने फेल मुजारे को देखा, ये तो मजूम है, इसका मतलब है ये लामे अमर है, उसे चाहिए कि वो लिखे। अब ट्रांसलेशन पर फोकस करते जाइएगा साथ साथ। लियंसुर हामिदु नील बनाता। अब यहाँ देखिए हामिदु नील बनात। लियंसुरु लियंसुर लियंसुर हामिदु नील बनाती। अब यहाँ लाम देखिए आया, आपने फिर मुजारे को फौरन एराब चेक किया, मजूम है तो ये लाम अमर है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हामिदु। यहाँ पर हमारे पास जो है फाइल है और अल बनाती मफूल है। हामिद को चाहिए कि सब लड़कियों की मदद करे, या हामिद को चाहिए लड़कियों की मदद करे। ठीक है। फिर ला तजरिबा। अब यहाँ ला या तजरिबानी था, मजूम हो गया, तो ये ला लाए नहीं है। तुम दोनों मत मारो, रोका जा रहा है। फिर है लम तकरिब मरियम व आयशा तू। अब लम आ गया, लम क्या है, हरफ नफी है। ठीक है। आगे फिर मुजारे मजूम हो रहा है, माजी में चला जाएगा। मरियम और आयशा ने झूठ बोला ही नहीं। ठीक है। लम्मा यकरा हामिदु नील कुराना। लम्मा आया, फिर मुजारे मजूम हो गया। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हामिद ने अभी तक कुरान पढ़ा ही नहीं। ठीक है। तो ये फेल मुजारे अखफ है। ठीक है। हेडिंग को इग्नोर करते हैं। तो आज हमने फेल मुजारे के कुछ टॉपिक्स की रिवीजन की है, जिस ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको शरह सदर अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।